Hello viewers, I am Tarang Kumar Bundwal, Assistant Professor in St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon. The following video is prepared as per the syllabus and course outline of Maharshi Dayanand University. However, are mostly general topics which cover the working and theoretical aspects of civil engineering. For better understanding and conceptualizing clearly, please do not skip the video and watch till end. We will be discussing about related important questions, feasibility and applications. Let's start the video. Hello students, hello everyone, welcome back to the channel. In today's session, we are going to continue with the subject design of concrete structures first, which is in 4th semester of Maharishi Dayanand University. And today we will be discussing about retaining walls, and here's a brief overview of types of retaining wall. So first type is gravity retaining wall. It is a thick concrete or masonry vertical cantilever wall supported at the base. The stability of the wall is maintained by its weight. It is generally made for heights less than 4 meter of the wall. तो एक कैंटिलीवर वॉल की तरह एक्ट करता है जिसका बेस सपोर्टेड होता है. जो वॉल की स्टेबिलिटी है वो इसके सेल्फ वेट से ही मेंटेन रहती है, और इसके अलावा ये वहां बनाई जाती है जहां पे हाइट 4 मीटर से कम की जरूरत है वॉल की. नेक्स्ट इज कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल. इट कंसिस्ट्स ऑफ अ वर्टिकल कैंटिलीवर वॉल एंड अ बेस स्लैब. इट मे बी either T-shaped or I-shaped. The vertical wall, heel slab and toe slab of T-shaped retaining wall act as cantilever beam. तो एक वर्टिकल कैंटिलीवर वॉल से बनी होती है और एक बेस स्लैब से. या तो टी शेप की हो सकती है, आई शेप की भी हो सकती है, और इसके कंपोनेंट्स होते हैं वर्टिकल वॉल, हील स्लैब और टो स्लैब. नेक्स्ट इज काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल. When the height of retaining wall is more than 6 to 8 meters, it shall be economical to tie the vertical wall with the heel slab by counterforts at suitable spacing. तो जब हमें 6 से 8 मीटर से ज्यादा की हाइट रिक्वायरमेंट है रिटेनिंग वॉल के लिए, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, तो जो वर्टिकल वॉल होती है एक कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की, उसको उसकी हील से टाई कर दिया जाता है एक सूटेबल स्पेसिंग्स पे. वो टाइंग का जो प्रोसेस है वो इसकी काउंटरफोर्टिंग कहलाती है, और यही काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल है. द काउंटरफोर्ट एक्ट्स एज टेंशन measured to support the vertical wall and reduces bending moment in it. तो जो काउंटर फोर्ट है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि वॉल से हील को कनेक्ट कर देते हैं, वो एक टेंशन विद स्टैंडिंग मेजर बन जाता है जो कि बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करने के काम आता है. नेक्स्ट इज बटरेस रिटेनिंग वॉल. It is similar to counterfort retaining wall, except that the vertical wall is tied up with the toe of the retaining wall at some spacing. तो buttress retaining wall में counterfort retaining wall जैसे ही mechanism act करता है, पर इसमें load distribution थोड़ा अलग तरीके से होता है, क्योंकि इसमें vertical wall को toe के साथ टाई किया जाता है, ना कि heel के साथ, particular desired spacings पे. It acts as compression member to support the vertical wall and reduces bending moment in it. और counterfort retaining wall में आपने देखा था कि जो counterforts थे, they act as tension members, और buttress retaining wall में support करने के लिए जब हम vertical wall को toe से connect करते हैं, then it acts as compression member ताकि बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करा जा सके. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द टो स्लैब एंड रिड्यूसेस बेंडिंग मोमेंट इन इट. और ये टो स्लैब को सपोर्ट देने का भी काम करता है, और बेंडिंग मोमेंट टो स्लैब में भी रिड्यूस ही करता है, क्योंकि कंप्रेशन एक्ट की वजह से दोनों स्टेबल रहते हैं. नेक्स्ट इज बेसमेंट और foundation wall. Retaining wall restrained at the bottom by the basement floor slab and at the top
by the upper floor slab is known as basement wall. It is subjected to lateral earth pressure exerted by earthfill and the vertical load from the superstructure. तो बेसमेंट या फिर फाउंडेशन वॉल के ये जो टाइप है रिटेनिंग वॉल का, इसमें जो रिटेनिंग वॉल है उसको बॉटम से रिस्ट्रेन कर दिया जाता है. फ्लोर स्लैब, जो बॉटम बेसमेंट फ्लोर स्लैब उसको रिस्ट्रेन कर दिया जाता है, और जो टॉप पोर्शन है उसको अपर फ्लोर स्लैब से रिस्ट्रेन करा जाता है, और इस टाइप की वॉल को बेसमेंट वॉल बोला जाता है. और ये लेटरल अर्थ प्रेशर विदस्टैंड करती है जो कि अर्थ फिल की वजह से जनरेट होता है, और कोई भी ऊपर जो भी सुपर स्ट्रक्चर होगा उसकी वजह से वर्टिकल लोड्स को विदस्टैंड करती है. नेक्स्ट इज ब्रिज अबटमेंट. द बिहेवियर ऑफ ब्रिज अबटमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ बेसमेंट और फाउंडेशन वॉल. तो ब्रिज अबटमेंट का बिहेवियर बेसमेंट वॉल और फाउंडेशन वॉल जैसा होता है. The bridge superstructure induces horizontal as well as vertical loads that alter its behavior from that of cantilever wall. पर इस केस में डिफरेंस क्या होता है कि जो ब्रिज का अबटमेंट है उसके ऊपर जो भी सुपरस्ट्रक्चर होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फोर्सेस, दोनों लोड्स एक्सर्ट करता है, जिस वजह से जो ब्रिजेस अबटमेंट का बिहेवियर है वो कैंटिलेवर वॉल के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है. तो ये कुछ टाइप्स हैं, उनके डायग्राम जो भी हमने पढ़े. दिस इज ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, ये आप देख पा रहे हैं. ये टो पोर्शन है, ये हील पोर्शन है, और ये पोर्शन है ग्राउंड पोर्शन जो कि सॉइल को रिटेन करने का काम करेगा. तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये अपने सेल्फ वेट की वजह से ही स्टेबल है. इसको कुछ इस तरीके से बना जाता है जिसको जो बॉटम है उसको थोड़ा सा थिक रखा जाता है और टॉप को थोड़ा सा थिन रखा जाता है. नेक्स्ट इज कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल. इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि ये टो स्लैब है और ये वाला पोर्शन हील स्लैब है, एंड दिस इज वर्टिकल वॉल जिसको स्टेम भी बोला जाता है. अब यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे अर्थ है जो रिटेनिंग, जिसको रिटेनिंग करनी है जिसकी, तो वो अर्थ यहाँ पे है. दिस इज टो स्लैब, दिस इज हील स्लैब, और ये इस तरीके से यहाँ पे मिट्टी को रोकता है. नेक्स्ट इज काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल. इस केस में क्या है, ये टो स्लैब है, ये वाला पोर्शन जमीन के अंदर रहेगा, इतना पोर्शन ये फाउंडेशन की तरह एक्ट करेगा, यहाँ से लेके ऐसे ये वाला जो पोर्शन ये नीचे रहेगा जमीन के. इसके अलावा इस बार जो लैंड है रिटेन यहाँ से करनी है, यहाँ पे अर्थ फिल होगा तो ये वाले फेस उसको रेजिस्ट करेगा बाहर गिरने से, ये रिटेन करेगा. पर ये जो काउंटर फोर्ट है, ये जो एक्स्ट्रा हमने डेवलप करा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है, इसका जो हील स्लैब है यहाँ से हमने कनेक्शन दे दिया है, तो वो कुछ इस तरीके से बन गया है. तो जब हम इसको कनेक्ट करते हैं और यहाँ से सॉइल प्रेशर, सॉइल सरचार्ज डेवलप होगा, तो इसको इस डायरेक्शन में पुल करेगा, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में पुल करेगा, जिस वजह से यहाँ पे इस मेंबर में टेंशन क्रिएट होगी. तो ये टेंशन के थ्रू जो वॉल है, जो भी सॉइल प्रेशर है उसको विदस्टैंड करेगी. अब ठीक इसी का उल्टा केस है बटरेस रिटेनिंग वॉल में. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वर्टिकल वॉल है, हील स्लैब है और ये टो स्लैब है, और ये जो इस बार बना है टो स्लैब पे, ये कहलाता है बटरेस. इस बार भी क्या है, सेम जो अर्थ प्रेशर है, जो अर्थ फिल है, वो इस बार इधर से आ रहा है. जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे इधर से आ रहा था, तो यहाँ पे खिंचाव आ रहा था, टेंशन बन रहा था. यहाँ पे आएगा तो ये इसको अर्थ को रिटेन करने के लिए ये वाला फेस है, ये वाला फेस जो है ये बटरेस पे कंप्रेशन इंड्यूस करेगा, क्योंकि इस बार अर्थ यहाँ से रिटेन हो रही है. तो ये जो वर्टिकल वॉल को हमने टो स्लैब से कनेक्ट करा हुआ है, ये बटरेस कहलाता है, और ये कंप्रेशन मेंबर की तरह एक्ट करता है. So, ये जो सारी फिगर्स थी, ग्रेविटी वॉल, कैंटिलीवर वॉल, काउंटरफोर्ट वॉल
और बटरेस वॉल, ये सब जो रिटेनिंग वॉल्स हैं ये फ्री स्टैंडिंग रिटेनिंग वॉल्स की कैटेगरी में आती हैं। फ्री स्टैंडिंग, दे कैन act independently with shallow foundation. नेक्स्ट इज रिटेनिंग वॉल्स इन बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। अब ये बिल्डिंग्स और ब्रिजेस की रिटेनिंग वॉल है जो कि स्ट्रक्चर में ही एम्बेडेड होती हैं, उसका एक इंटीग्रल पार्ट होती है। जैसे कि अभी देख पा रहे हैं, दिस इज बेसमेंट फाउंडेशन वॉल। तो ये फुटिंग है जो फाउंडेशन है, और ये उसकी वॉल है जहाँ पे फुटिंग है। तो क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं ये डायरेक्टली इसी से कनेक्टेड है। अब फुटिंग का जो लेवल है इसके ठीक ऊपर यहाँ पे फ्लोर स्लैब है, और इसी तरीके से ये जो वॉल जैसे कंटिन्यू होती जाएगी उसके ऊपर फ्लोर्स आते जाएंगे। और ये केस है ब्रिज अबटमेंट का। ये अगर ब्रिज की फुटिंग है तो ये अबटमेंट है, ये बियरिंग है जहाँ पे ब्रिज का गर्डर रखा हुआ है, और ये उसकी डेक स्लैब। नाउ अनदर important topic is forces acting on retaining wall। रिटेनिंग वॉल पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट करती है? The forces acting on retaining wall may be grouped as follows। कुछ इस तरीके से ग्रुप अप कर सकते हैं रिटेनिंग वॉल्स की फोर्सेस को। सेल्फ वेट ऑफ सॉइल अबव द फाउंडेशन बेस। तो जो सॉइल का वेट है फाउंडेशन के बेस फाउंडेशन के ऊपर का जो भी सॉइल है उस सबका वेट एक्ट करता है फोर्स की तरह। वेट ऑफ द सॉइल ओवर रिटेनिंग वॉल। अब जो रिटेनिंग वॉल पे जो रिटेनिंग वॉल का जो फेस है, जो मेजरली जिसके लिए वो डिजाइन किया गया है, उसका भी वेट है, उसका वेट भी काउंट होता है, वो भी एक्ट करता है फोर्स की तरह। देन अर्थ प्रेशर ऑन रिटेनिंग वॉल, जो भी सरचार्ज, जो भी प्रेशर डेवलप हो रहा है फिल की वजह से, कंप्रेशन की वजह से, किसी भी मूवमेंट की वजह से, वो अर्थ प्रेशर। सरचार्ज दैट इज फोर्सेस ड्यू टू लोड्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब जिस सॉइल सरचार्ज को, जिस सॉइल कुशन को हमारी रिटेनिंग वॉल रिटेन कर रही है, उसके ऊपर हो सकता है कोई मूवमेंट हो, कोई सरचार्ज हो, कुछ लोड ऐड हो, तो उस वजह से वो लोड भी उस पर ही एक्ट करेगा, वो भी उस पर ऐड होगा। नेक्स्ट इज सॉइल रिएक्शंस ऑन द फुटिंग। सॉइल की जो भी रिएक्शंस हैं वो भी फुटिंग पे एक्ट करेंगी। एंड सिक्स्थ इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन फुटिंग ड्यू टू स्लाइडिंग। और बहुत माइनर स्लाइडिंग भी होती है, बहुत सारे केसेस होते हैं किसी भी लोड, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो ये जो स्लिपिंग है, ये जो स्लाइडिंग है, ये फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करती है। So the main force that acts on retaining wall is the lateral pressure induced by the retained earth। मेन प्रेशर रिटेनिंग वॉल पे वही है जिसके लिए वो रिटेनिंग वॉल बनाई गई है, यानी कि वो सॉइल जिसको वो रिटेन कर रही है उसकी वजह से जो भी प्रेशर और वेट इंड्यूस हो रहा है। So this is active and passive earth pressures acting on retaining wall। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर ये सॉइल सरचार्ज है, यहाँ पे ये रिटेनिंग वॉल है, अगर ये सॉइल सरचार्ज है तो C to B ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे जो सॉइल का वेट एक्ट कर रहा होगा ये ऑलमोस्ट 45 प्लस 5/2 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। और ये जो डिस्टेंस है D डिस्टेंस पे, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 45 माइनस 5/2 पे के एंगल पे एक्ट करेगा जो भी प्रेशर होगा। The active and passive earth pressure is increased primarily with depth as a function of the weight of soil। तो एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर वो अज्यूम किया जाता है कि वो लीनियरली बढ़ता है जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है, और ये वेरी करता है सॉइल के वेट के हिसाब से, यानी कि ये सॉइल के वेट का फंक्शन है।
So the following conditions of earth fill occur. अर्थ फिल की कुछ कंडीशंस हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर्स हैं वो लीनियरली बढ़ते हैं. किस रीजन से बढ़ते हैं? वो इन रीजन से बढ़ते हैं. लेवल बैकफिल, अगर जो बैकफिल उसको लेवल अप करने के लिए हम एडिशनल बैकफिल दे रहे हैं, वो सेकंड है स्लोपिंग बैकफिल. जो बैकफिल में स्लोप पोर्शन है वो. थर्ड इज लेवल बैकफिल विद सरचार्ज. लेवल बैकफिल और उसके ऊपर कोई एडिशनल वेट, कोई सरचार्ज. लेवल बैकफिल विद सबमर्ज सॉइल. लेवल बैकफिल के ऊपर सबमर्ज सॉइल अगर डालते हैं तो वो भी वेट एक्स्ट्रा क्रिएट करेगी. द अर्थ प्रेशर फॉर दीज कंडीशंस इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज. तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम एक बार जान लेते हैं कि किस तरीके से एक्ट करते हैं. सो फर्स्ट इज लेवल बैकफिल. द प्रेशर डायग्राम फॉर लेवल बैकफिल इज शोन इन द फिगर बिलो. The unit pressure intensity at a distance y. तो यूनिट प्रेशर इंटेंसिटी जो कि डिस्टेंस y पे एक्ट करेगी फ्रॉम द टॉप ऑफ अर्थ रिटेन्ड. तो अर्थ जहां तक रिटेन हो रही है रिटेनिंग वॉल की मदद से, वहां से डिस्टेंस मेजर होगा एंड इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. Py is equals to CWE into y, where C is coefficient of earth pressure, WE is unit weight of earth, और y आप यहाँ पे आप मेंशन कर ही चुके हैं, it is distance from the top of earth retained. तो ये लेवल बैकफिल के केस में अर्थ प्रेशर इस तरीके से मेजर होता है. तो ये वो वैल्यू है Py की. एंड दिस इज, ये अगर ये टॉप है, यहाँ तक अर्थ है, यहाँ तक अर्थ रिटेन कर पाएगी ये रिटेनिंग वॉल. ये टॉप है तो यहाँ से लेके अगर हमें यहाँ पे निकालना है तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y. ये टोटल अर्थ रिटेन्ड है, ये जो टोटल हाइट है. दिस इज एक्टिव प्रेशर जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है एंड इट एक्ट्स एट वैल्यू HA/3. ये जो पूरा HA है इसके HA/3 वैल्यू पे. So this is coefficient due to active pressure. This is coefficient due to passive pressure. The formula would be same. This value HB is this one which acts on this side. So the coefficient CA is for active earth pressure and CP for passive earth pressure, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया. And it is their values is given as follow. उनकी वैल्यू निकालने के लिए कुछ हम ऐसे फॉर्मूलाज को यूज करते हैं, ये आप याद कर लेंगे. CA, this value is equal to 1 minus psi phi upon 1 plus sin phi, and CP is 1 plus sin phi upon 1 minus sin phi, and phi is angle of internal friction. The total active earth pressure PA and total passive earth pressure PV acting on unit length of wall are determined as follows. तो P और PV की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है. 0.5 CA WE H square A. ये जो जगह है CA, इस ये हाफ हो जाएगा WE H square A, ये वाला पोर्शन. And for passive pressure PB is equals to this time CP क्योंकि coefficient of passive earth pressure है WE H square, ये HB square जो ये वाला पोर्शन है. Next is sloping backfill. The active earth pressure shall have triangular distribution as shown in the figure. The coefficient CA for active earth pressure is given by this formula. तो इस केस में स्लोपिंग बैकफिल के केस में हम ये मान के चलते हैं कि एक्टिव अर्थ प्रेशर का जो है वो एक ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा. जो भी उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ट्रायंगुलर ज्योमेट्री में होगा. और CA के लिए फॉर्मूला ये है, CA is equals to cos theta multiplied by
cos theta minus cos square theta minus cos square theta into 0 raised to the power 0.5, and this divided by cos theta plus cos square theta minus cos square phi raised to the power 0.5, and where theta is एंगल ऑफ स्लोप ऑफ द ब्लैक बैकफिल, जैसे कि जो नाम है वही जिस जो एंगल दिया हुआ जितना स्लोप बना रहा है बैकफिल वो, द टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर एक्टिंग ऑन द यूनिट विड्थ ऑफ द वॉल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। और अगर यूनिट विड्थ है वॉल की तो उस पर जितना प्रेशर एक्ट करेगा, एक्टिव प्रेशर अर्थ प्रेशर, उसका फॉर्मूला है ये P is equal to 0.5 CAWE स्क्वायर। सेम यही फॉर्मूला है, बस इस बार जो CA की वैल्यू है वो हम इस तरीके से डिटरमिन करेंगे। और याद रहे कि ये यूनिट विड्थ के लिए, अगर विड्थ बढ़ेगी तो यहाँ पे वो एंटिटी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। It acts parallel to the slope of the backfill at 1/3 the height of triangular pressure diagram। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रेशर, ये ट्रायंगुलर प्रेशर डायग्राम है जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, और ये इसकी 1/3 हाइट पे एक्ट कर रहा है। ये सेम है जैसा कि आप लोगों ने ऊपर वाले फिगर में देखा था, ये वाली कंडीशन सेम रहेगी, पर यहाँ पे स्लोपिंग बैकफिल की बात हो रही है। और ये जो एंगल है ये थीटा है। And in the similar way, the coefficient of passive earth pressure for sloping backfill is given by this formula. Cp is cos theta multiplied by cos theta plus cos square theta minus cos square phi, and this expression is rooted. Then cos theta minus cos square theta minus cos square phi, and this expression is also rooted. Next is level backfill with surcharge. The earth pressure due to surcharge is same as that due to an equivalent height of earth that causes vertical load of the magnitude of the surcharge. तो इस केस में जो अर्थ प्रेशर है वो सरचार्ज की वजह से, जैसे नाम से पता चल रहा है, तो वो सेम होगा जो कि उस केस में अर्थ की इक्विवेलेंट हाइट से होगा जो कि वर्टिकल लोड कॉज कर सकता है। A uniform surcharge WS is equivalent to an additional height HS of the earth given by this formula. तो एक यूनिफॉर्म सरचार्ज वैल्यू WS वो इक्विवेलेंट होगा एक एडिशनल हाइट HS के। HS is given by WS upon WE, where WS is surcharge per unit weight and W is unit weight of soil. अर्थ प्रेशर विद लेवल बैकफिल सरचार्ज के केस में कुछ इस तरीके से एक्ट करता है। अगर ये अर्थ प्रेशर विद लेवल बैकफिल, ये लेवल बैकफिल यहां तक और इसके ऊपर सरचार्ज है, तो इसमें जो वैल्यू है HS, ये जो एडिशनल वैल्यू है, ये फॉर्मूला इसका होगा ये निकालने के लिए WS अपॉन WE। और ये आप डिस्कस कर ही चुके हैं हम लोग कि WS और WE क्या क्या है। तो ये जैसे एडिशनल ये WS है, दिस सरचार्ज पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन द टॉप ऑन दिस एरिया। और सेम जो पैसिव प्रेशर है आप देख पा रहे हैं, इसकी वैल्यू सेम है CP WE HB। इस केस में ये हो जाता है CA WE HS प्लस HA, क्योंकि इस बार टोटल यहां तक जो वॉल का जो अर्थ का वेट है यहां तक का रिटेन करना है, यहां तक का विथस्टैंड करना है। This expression is same again, HB, this value, and this is HB by 3. Next is
level backfill with submerged soil. So when the water table rises behind the wall, the pressure on the wall increases as shown in the figure below. The pressure above the water level remains unaffected. The pressure below the water level consists of modified earth pressure and hydrostatic pressure. अब कई केस में क्या होता है कि वाटर टेबल कई बार राइज हो जाती है, और वाटर टेबल राइज होने की वजह से, जैसे कि अभी जो नेचर है, जो भी हम लोगों ने मटेरियल्स में भी डिस्कस किया है, उस केस में जो सीप इन पानी जो सीप इन करता जाता है वो मिक्स हो जाता है आगे जो रिटेन्ड अर्थ है उसमें, तो उस वजह से वाटर जो है वो एक एक्सटर्नल प्रेशर जनरेट करता है वॉल पे, और जो पानी के ऊपर का जो प्रेशर है वो अनअफेक्टेड है, वो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है। तो ये कंडीशन है, जैसे ये एक रिटेनिंग वॉल है और ये यहाँ तक सॉइल रिटेन है यहाँ पे, और वाटर लेवल अभी इधर है, ये वैल्यू है H2। नाउ दिस इज प्रेशर ड्यू टू अर्थ अबव वाटर लेवल। अगर तो इस केस में ये जैसे अर्थ यहाँ पे वाटर लेवल के ऊपर है, तो इस केस में जो प्रेशर जनरेट होगा यहाँ तक कुछ इस तरीके से होगा, और जो वाटर लेवल के ऊपर अर्थ है वो ऐसे एक्ट करेगी, और इसका फॉर्मूला होगा CaWeH1, और H1 वैल्यू है ये यहाँ से यहाँ तक, और ये वैल्यू CaWeH1 सेम। नाउ दिस इज ये जो दूसरे टाइप का जिसपे प्रेशर एक्ट करेगा वो है प्रेशर ड्यू टू सबमर्ज्ड अर्थ। ये वाली जो सबमर्ज अर्थ यहाँ पे जो पानी की वजह से जितना भी सॉइल जितना भी अर्थ सबमर्ज्ड है उसकी कैलकुलेशन होगी ये CaWeH2 सिर्फ इस हाइट के लिए, एंड दिस इज प्रेशर ड्यू टू वाटर, ये खाली वाटर के लिए, तो इस केस में WeH2 क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर नहीं एक्ट करेगा, तो ये सिर्फ पानी के लिए। दिस इज नॉट फॉर द केस ऑफ सॉइल, एंड दिस इज टोटल प्रेशर ऑन द वॉल, इन तीनों को कंबाइन करके ये प्लस ये एडेड विद दिस, ये आप देख पा रहे हैं। सो दिस इज CaWeH1, then CaWeH2 and then WeH2. This is total pressure on the wall for the same condition. So this was all with today's session, and in the next session we'll discuss about stability of retaining walls. In today's session I hope the types of retaining walls and the forces acting on retaining walls is clear to you, and if in case there is any doubt I hope you guys will contact me. Till then, keep studying, have a great time, and we will meet in the next lecture. Thank you. I hope you guys could understand and correlate the topics taught in today's session. If there is any query or subject matter issue, feel free to mail me at the given email ID. Live discussion sessions could also be used for discussion of doubts. Thank you.